Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ Welcome to this Hindi Bible study of Ebenezer Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी बाइबल स्टडी जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's Bible study, let us turn to the Gospel according to Saint Matthew, chapter 18, verses 11 to 20. और आज के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 11 से लेके 20 वचन। For the Son of Man has come to save which is lost. What do you think? If any man has 100 sheep and one of them goes astray, will he not leave the 99 on the mountains and go and seek the one that has gone astray? And if it so happens that he finds it, truly, I say to you that he rejoices over it more than over the 99 which have not gone astray. In the same way, it's not the will of your Father who is in the heavens that one of these little ones perish. Moreover, if your brother sins against you, go reprove him between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother. But if he does not hear you, take with you one or two more, that by the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. And if he refuses to hear them, tell it to the church. And if he refuses to hear the church also, let him be to you just like the Gentile and the tax collector. Truly I say to you, whatever you bind on the earth shall have been bound in heaven, and whatever you loose on the earth shall have been loosed in heaven. Again, truly I say to you, that if 2 of you are in harmony concerning any matter for which they ask, it will be done for them from my Father who is in the heavens. For where there are 2 or 3 gathered into my name, there am I in their midst. क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने, तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह ना सुने, तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी न माने, तो कलेशिया से कह दे। परंतु यदि वह कलेशिया की भी न माने, तो तू उसे अन्य जातियों महसूल लेने वाले जैसा जान। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। The Son of Man is come to save that which is lost. क्योंकि मनुष्य का पुत्र इस जगत में इसलिए आया ताकि जो खोए हुए हैं उनको ढूंढने के लिए। Salvation was paid for at great price. और जो उद्धार है वो एक बहुत ही बड़ी कीमत दे के चुकाया गया है। Therefore, all who accept that salvation become the property of God the Father. और जिन लोगों ने भी उस उद्धार को ग्रहण किया है वो अब परमेश्वर का खुद की प्रॉपर्टी है। If one of the 100 sheep be gone astray, does he not leave the 99 and go into the mountains? और अगर किसी की 100 भेड़ें हैं, उसमें से एक कहीं भटक जाए, तो क्या वह चरवाहा 99 को छोड़ के उस एक के पीछे नहीं जाएगा? This verse proclaims the extensive efforts of the Lord to find the lost one. और ये परमेश्वर की उस ऐसी लालसा को दिखाता है, उस चीज को दिखाता है कि वो कैसे वो जो भटकी हुई भेड़ है उनके लिए उसका कितना दुख है। This also proves that believers can go astray. और ये और सबूत भी है कि जो विश्वासी हैं वो भटक सकते हैं।
therefore refutes the unscriptural doctrine of unconditional eternal security. और इसीलिए हमें उन सब चीजों को नकार देना चाहिए जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ होती हैं। He rejoices more of that sheep than that of the 99 which went not astray. और जब वो भटकी हुई भेड़ जब मिल जाती है तो बाइबल बताती है कि तो उसमें बहुत ज्यादा आनंद होता है, ना उन 99 से भी भड़की जो नहीं खोई थी। On being found, the lost sheep is a great victory over Satan. और जो खोई हुई जो भेड़ थी उसे वापस लेकर आना वो शैतान के ऊपर बहुत ही बड़ी एक विजय है। The Bible says that a believer can cease to believe and therefore become an unbeliever. और बाइबल बताती है कि जो एक विश्वासी होता है वो भटक भी जाता है और वो फिर अविश्वासी बन जाता है। If so, such a one will be lost. और अगर ऐसा होता है तो वो जो है वो भटक के वो खो जाता है। And this shows the preciousness of the soul. और ये दिखाता है कि हमारी जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो कितनी कीमती है। Yeah. Verse 15, if your brother sins against you, reprove him between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother. यदि विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा, यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। God wants the sinner to know his sin and confess his wrongdoing. और परमेश्वर चाहता है कि जो पापी हैं वो अपने पाप का अंगीकार करें और वो जाने और कि पश्चाताप करें अपने पापों के लिए। Let no third party may know the wrongdoing of the sinning brother. और जो तीसरा इंसान है वो जानने पाए, जिस भाई ने जो पाप किया उसके बारे में वो जानने पाए। This is a covering of love. और ये जो है वो प्यार का जो एक कवच है वो है। Verse 17, and if he refuses to hear them, tell it to the church. And if he refuses to hear the church also, let him be to you just like the Gentile. और यदि वह उसकी भी ना माने तो कलेशिया से कह दे, परंतु यदि वह कलेशिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति जैसा मान ले। So there can be no fellowship if he refuses to listen to the elders of the church. और फिर हम उसके साथ कोई भी संगति नहीं रखेंगे अगर वो कलेशिया के जो बड़े हैं उनकी भी बात नहीं माने तो। In verse 18, we find the power of the believer. और हम इस वचन 18 में हम देखते हैं कि एक विश्वासी की क्या ताकत होती है। The believer has the right to bind and loose. और एक विश्वासी की जो ताकत होती है कि वो बांध भी सकता है और खोल भी सकता है। To bind means to condemn, and to loose means to forgive. ओके, जो हम बांधते हैं उसका मतलब है कि हम अपने जो दोष हैं उसको हम गुनाह को कबूल करते हैं, और जो खोलने का मतलब है हम माफ करते हैं। If he is unwilling to listen to the elders of the church, there can be no fellowship with him. और अगर जब वो इंसान जो है वो कलीसिया के जो बड़े हैं उसकी भी बात मानने से इनकार कर दे तो हम उसके साथ कोई भी संगति नहीं रखेंगे। If the believer conducts himself scripturally, the decision reached will be honored and ratified in heaven. और जो कुछ भी जो एक विश्वासी है जो स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग वो चलता है तो वो सब कुछ जो वो उस स्वर्ग में वो चीज देखा जाता है। Verse 19, if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. और फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। Yeah. So anything is conditional on it being the will of God.
और हर एक चीज जो है वो कंडीशनल है और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। God will never allow His word to be used against Himself. और ये इन शब्दों को परमेश्वर कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि उसके इच्छा के विरुद्ध में हो। Ask refers to prayer that deals with the brother who refuses to hear the church. और यहाँ पे मांगने का मतलब है कि हम दुआ करते हैं उस भाई के लिए जो कलीसिया की सुनने से मना करता है। Which, two or three are gathered together into the Lord's name. और जहाँ पे परमेश्वर के नाम से दो या दो से अधिक इकट्ठे होते हैं, So if there is any problem, they are to tell it to the church. और वहां पे अगर कोई भी समस्या है तो वो कलीसिया को बता सकते हैं। They need to tell it to the church. और उन्हें जरूरत है कि वो कलीसिया को बताएं। The meetings of the believers are initiated by the Lord. और जो विश्वासियों की जो मीटिंग होती है वो परमेश्वर के द्वारा उसका इनिशिएटिव लिया जाता है। So yeah, the Lord calls the believers out of all persons. और परमेश्वर ने विश्वासियों को बुलाया, हर किसी को बुलाया। So God is concerned with the things that occupy them and gathers them together into His name to enjoy the riches of His presence. और परमेश्वर इस बात के लिए वो कंसर्न करता है कि वो जो भी लोग हैं वो किस चीज से ऑक्यूपाई हैं और वो अपने पास बुलाता है ताकि उसके पास जो है उसका वो आनंद उठा सके। Such a gathering of a few people implies one of the ways of the church to meet locally. और ये जो कुछ लोग जो मिलके यहाँ पे बैठते हैं तो वो जैसे कि कलीसिया में होती है, जो लोकल उसमें हम लोग आके मिलते हैं परमेश्वर के नाम से। Where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। This requirement is to meet in His name. और ये जो है कि हम उसके नाम में मिलते हैं। Yeah. When two or three gather in the name of Jesus Christ, in the eyes of the Lord, it constitutes a church. और जब दो या दो से अधिक लोग जब यीशु मसीह के नाम से जब मिलते हैं तो परमेश्वर की आंखों के आगे वो एक कलीसिया मिलती है। So that shows the enormous power of prayer by the believers. और ये दिखाता है कि कितना ताकतवर जो है वो उस ताकत को दिखाता है उस प्रार्थना की जो विश्वासियों की है। That shows the power of united prayer. और ये दिखाता है कि हम एक साथ होके उस दुआ की जो ताकत है उसको दिखाता है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन।